please type it in the chat box. Okay, thanks Rajiv. So ये सेशन हम लोग bilingual करेंगे, हिंदी and English mix of both, but majorly we will cover it in Hindi so that everybody can understand. So everything is written in English, but अगर anybody has any doubt they can speak and ask me. The only request I have is just be on mute for some time. We will cover your question answers, any doubts at the end of this webinar. Okay. So we will start this. So basically this webinar we will cover FPA, what is dry FPA. Then there are different type of FPA we can opt. One is standard FPA and heavy and bulky FPA. So we will cover heavy and bulky FPA as well. And then at the end of this webinar we will have question and answer round. So we will begin with FPA. So Amazon में सेल करने के दो ways हैं. First is FBA and of course second is launching your seller account on Amazon platform. So you already know seller on Amazon. And second is FBA. और FBA में क्या होता है कि you have to create a shipment, you have to send your product to the Amazon warehouses and जब भी ऑर्डर आएगा आपका Amazon के warehouse से automatically Amazon की टीम वहाँ से डिलीवर करेगी कस्टमर्स को. So by definition, if we go, you have to send and store your product in Amazon fulfillment centers. वहीं पे आपके products पैक होंगे, deliver होंगे and customer को provide किए जाएंगे. Return आएगा, वो भी Amazon के warehouse पे ही आएगा. So FBA makes you eligible for the following features on Amazon. If you are doing FBA, अगर आप FBA करते हो, then there is huge opportunity you get in terms of visibility. लगभग 3 से 4 गुना जो हमने visibility growth देखी है in FBA as compared to non-FBA. Guys, please be on mute. Just a simple request. Please mute your mic. What are the benefits we get in FBA? First is increased visibility. So as compared to normal non-FBA thing, you get 3 to 4 times visibility on your products. Second key benefit sending in FBA is you get a prime tag. By default जब भी आप अपने products FBA में बेचते हो, आपके जो products होते हैं वो SKUs होते हैं वो prime eligible हो जाते हैं and वहाँ पे Amazon fulfillment का tag उनको मिल जाता है. In other words, आपको guaranteed delivery मिल जाता है वहाँ पे. मतलब कि आपके जो products हैं वो within 1 max to max 2 days में customers को ship हो जाते हैं, deliver हो जाते हैं, basis on the customer location. Second benefit you get is inventory management and order processing. जो भी होता है वो Amazon के through होता है. आपको सिर्फ एक बार shipment बना के Amazon के warehouses में भेजना होता है. Also, the third benefit is 100% pin code coverage on pan India level, you can say. Because easy ship में क्या होता है कि आप कुछ categories से कुछ area के pin codes को आप cover कर सकते हो. National visibility आपको लेनी है तो you can also opt for Amazon FBA, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 100% पिन कोड्स कवर होते हैं. कुछ एक्सक्लूसिव डील्स एंड प्रमोशंस जो FBA के लिए सेलर्स के लिए चल रही होती है उनके लिए एलिजिबल हो जाते हो. देन यू गेट ए गारंटेड डिलीवरी, मींस 1 to 2 days डिलीवरी ऑप्शंस अगर आपकी रहती है. एंड आल्सो देयर आर चांसेस यू गेट एलिजिबल टू विन ए बाय बॉक्स. सो बाय डिफॉल्ट आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करने लग जाते हो इन केस योर अकाउंट हेल्थ एंड एवरीथिंग इज फाइन. दीज आर द बेनिफिट्स. अभी तक किसी को कोई डाउट व्हाट इज FBA, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ FBA? No. Okay, thanks. So we will move to the next steps. So how fulfillment by Amazon works? First of all, you have to create a shipment. आपको listing करना होता है. Once your FBA listing is done, you go ahead and take the appointment from the seller central. उसके बाद आपको shipment जो है Amazon warehouse में भेजना होता है. So this is the first step. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आप Amazon warehouses आपकी जो शिपमेंट आती है उसको अनबाउंड करके एक यूनिट से लेकर जितनी आप इन्वेंट्री भेजना चाहते हो आप भेज सकते हो. देयर इज नो एज सच लिमिट अंटिल अनलेस स्पेस इज अवेलेबल. जब भी ऑर्डर आएगा Amazon warehouse से आपका जो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा.
इससे फायदा है कि आपका गारंटेड डिलीवरी मिल जाती है विद इन 1 to 2 days बेसिस ऑन द कस्टमर लोकेशन आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। तो एक जो डिलीवरी आप फीडबैक कह सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए, वो एक हैप्पी कस्टमर्स मतलब जनरेट करता है काइंड ऑफ। व्हाट इज द एपीए प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल एपीए आपको एक तरह से आपको एक एडिशनल प्लेस जो है मिलती है अपने प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए। सो इसके लिए आपको अपना जो रजिस्टर्ड जीएसटी होता है उसमें एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हमें मेंशन करना होता है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप अपना जो है जीएसटी में मेंशन करवा सकते हो थ्रू योर सीए और थ्रू Amazon सीए, या फिर आप फ्री में भी कर सकते हो बाय ऑप्टिंग फॉर ऑटो एपीओपी वाला ऑप्शन। अब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होता है बेसिकली वो वेयर हाउस का एड्रेस होता है जो आपको मेंशन करना होता है जिस वेयर हाउसेस में आप अपने प्रोडक्ट्स भेजोगे। नाउ सपोज अगर आपका बिजनेस दिल्ली में है एंड दिल्ली के वेयर हाउस में आप अपना एपीए जो एपीए है उसमें अपने प्रोडक्ट्स भेजना चाहते हो, तो आपको दिल्ली के वेयर हाउस का एड्रेस जो है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन करना पड़ेगा जीएसटी में। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मेरा बिजनेस दिल्ली में है एंड मुझे जो Amazon का वेयर हाउस चाहिए वो चाहिए मुंबई में। तो पहली थिंग आपके पास मुंबई का जीएसटी होना चाहिए। जब तक आपके पास उस स्टेट का जीएसटी नहीं है आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन नहीं करवा पाओगे। सो इन सेकंड केस अगर आपको मुंबई में उसके Amazon के वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट्स भेजने हैं तो आपको दिल्ली का जीएसटी तो आपके पास है विच इज ओके, बट आपके पास मुंबई के जीएसटी भी होना चाहिए। फिर मुंबई के जीएसटी में आप मुंबई के वेयर हाउस का एड्रेस ऐड करवाओगे। Then of course the second thing is आपके पास लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं प्रोडक्ट्स है जो आप एफसी में भेज सकते हो, then you will go ahead and do the FBA. What is the FBA workflow? First of all you have to get the NOC जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है एपीओपी रजिस्ट्रेशन के लिए वो करवाना होता है। फिर एपीओपी हो जाने के बाद आपको टैक्स कोड्स टैक्स सेटिंग्स अपने अपडेट करनी होती है एपीए सेक्शन में। जब ये सब पेपर वर्क्स हो जाते हैं यू हैव टू गो अहेड एंड क्रिएट द शिपमेंट। शिपमेंट बनाने के बाद आपको एफसी का अपॉइंटमेंट लेना होता है। उसमें आप दो ऑप्शंस चूज कर सकते हो, या तो आप सेल्फ शिप कर सकते हो मतलब खुद से अपने प्रोडक्ट्स एफसी में डिलीवर कर सकते हो अगर आप कैपेबल हो, अदरवाइज आप Amazon की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो एटीएस के नाम से आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो एटीएस के लिए आप एक डेट सेलेक्ट करते हो, टाइम स्लॉट सेलेक्ट करते हो। दो टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, मॉर्निंग 11 to 2, आफ्टरनून 2 to 4:15। आप इनमें से कोई भी एक स्लॉट चेक करके Amazon को आप बता सकते हो। Amazon के जो डिलीवरी एजेंट्स है वो आपसे शिपमेंट कलेक्ट करके ले जाएंगे। बट उससे पहले आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल टैग लगाना होता है एंड एमआरपी टैग लगाना होता है। जब वो प्रोडक्ट्स आपके ले जाएंगे देन इट गेट्स इनबाउंडेड एंड आपका Amazon एपीए अकाउंट जो है वो लॉन्च हो जाता है जैसे आपके प्रोडक्ट्स इनबाउंड होते हैं। वर्कफ्लो, किसी को कोई इश्यू एनी डाउट इन वर्कफ्लो पार्ट? No. Okay, thank you. So now the first thing is APOP हम लोग करते कैसे हैं? So APOP as I said पहले तो आपके पास उस स्टेट का जीएसटी होना चाहिए। उसी जीएसटी में आप उस स्टेट के एफसी का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन कर सकते हो। नाउ ये जो चीज है ये सिर्फ स्टैंडर्ड एफसी के लिए अप्लाई होती है, मतलब जो आपके स्मॉल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं या ओवरसाइज प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए अप्लाई होता है। हैवी एंड बल्की के लिए ये एपीओपी वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं होता है, उसके लिए एक डिफरेंट मेथड होता है, वो हम लोग लगभग नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में कवर करेंगे। एपीओपी करने के लिए दो वेज होते हैं, या तो आप फ्री एपीओपी कर सकते हो जिसमें आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने होते। सेकंड वे इज यू कैन ऑप्ट फॉर थर्ड पार्टी सीए ऑप्शन जिसमें आपको मिनिमल अमाउंट ऑलमोस्ट 826 रुपीज आपको पे करना होता है टू अवर Amazon सी थर्ड पार्टी सीए जो एसोसिएटेड होते हैं हमारे साथ। देन देयर इज अ शिपमेंट प्रिपरेशन, इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है वो ले सकते हैं। बेसिकली यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि एपी के लिए शिपमेंट कैसे बनाते हैं, क्वांटिटी कैसे सेट करते हैं, प्रोडक्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेबल कैसे होता है, शिपमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, व्यू समरी। आई विल पॉज हियर फॉर 30 seconds। किसी को कोई डाउट है और इफ एनीबॉडी वांट्स टू टेक स्क्रीनशॉट दे कैन गो अहेड एंड डू इट। करके आएगी, रिटर्न आएगा, Amazon की टीम ही कस्टमर के वहां से पिक करेगी, रिटर्न भी आपका वेयर हाउस में ही आएगा। अगर आपको वो वापस अपने शॉप पे या अपने शोरूम में वापस मंगवाना है तब आपको रिमूवल क्रिएट करना होता है, तो वो शिपमेंट जैसे ही आप रिमूवल क्रिएट करोगे आपके पास तो वापस आ जाता है।
Okay, so now there is other thing which is called Tri-APA program. So basically Tri-APA program is a kind of promotional activity which we are running for APA sellers. इसमें ये प्रोग्राम लाने का मतलब तब था जब सेलर को लगता था कि मैं बहुत सारी कॉस्ट बियर करूंगा अपने प्रोडक्ट्स, अपनी इन्वेंट्री जो है स्टोरेज के लिए भेजूंगा, मेरी इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, फिर उसके लिए मुझे चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, और कल को अगर मेरा ऑर्डर नहीं आता है तो मुझे उसको अगर वापस रिकॉल करने हो अपने प्रोडक्ट्स, उसके लिए भी मुझे चार्जेस पे करने पड़ेंगे जो रिमूवल चार्जेस होते हैं। तो उन सब चार्जेस एंड सेलर के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए हमने एक ट्राई एपीए प्रमोशनल प्रोग्राम रन किया हुआ है जो अभी भी चल रहा है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, स्टोरेज चार्जेस होते हैं, पैकेजिंग चार्जेस होते हैं, एंड कभी भी अगर आपको रिमूवल लगाना है वो फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स या फिर 100 यूनिट्स आप ऑप्ट कर सकते हो फ्री में। मतलब विद इन द 3 मंथ्स अगर आप 100 यूनिट्स भेजते हो, यू डोंट हैव टू पे एनी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और रिमूवल चार्जेस। अब इनमें से एक ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, आइदर यू कैन सेंड योर प्रोडक्ट्स अप टू 3 मंथ्स या फिर आप 100 यूनिट्स तक भेज दो। अब सपोज अगर आपने अपने सेलर के प्रोडक्ट्स 100 यूनिट्स आपने विद इन 10 डेज ही भेज दिए, यू स्टिल हैव 80 डेज रिमेनिंग फॉर द 3 मंथ, राइट। अब वो 80 डेज में अगर आप और प्रोडक्ट्स भेजोगे देन यू हैव टू पे द चार्जेस। सो आइदर 100 यूनिट्स और 3 मंथ्स। एंड इसमें शिपमेंट वैल्यू की एक लिमिट होती है कि आप 1000 तक ही शिपमेंट वैल्यू आप फ्री में भेज सकते हो। अगर आपके शिपिंग चार्जेस 1000 के ऊपर जा रहे हैं, 1000 रुपीज के ऊपर, देन आपको वो चार्जेस पे करने होंगे। विद इन 1000 है तो आपको वो रिइंबर्स हो जाएंगे। एंड कुछ केसेस में आपको अपफ्रंट डिस्काउंट मिल जाता है उस केसेस में। चेक नहीं होस में So be specific fees waive offer, कहाँ वो फीस हमें जो वेवर मिलते हैं, एज आई सेड आपको फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स अप टू 100 यूनिट्स वो फ्री में मिलता है। कहाँ फ्री मिलता है? ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड पैकिंग एंड रिमूवल। दिस इज ए लिमिटेड टाइम ऑफर, इस साल चल रहा है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये चले, हो सकता है ना भी चले, बट जब अगर जो भी अपडेट रहेगा वो आपको मिल जाएगा। सेलर सेंट्रल पे भी आप देख सकते हो। तो जो बाकी के चार्जेस हैं आपके, रेफरल फी, क्लोजिंग फी, वेट हैंडलिंग फी, ये आपको नॉर्मल पे करना पड़ेगा, ये फ्री नहीं है। जो फ्री है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड रिमूवल फीस। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपके पास 2 वेज हैं। अगर आप फ्री वाला ऑप्ट करते हो, ऑटो एपीओ भी, विच इज ओके, वो फ्री ही रहेगा। अगर आप सीए के थ्रू करना चाहते हो देन यू हैव टू पे द अमाउंट। ट्राई एपीओ में वो फ्री नहीं है। So referral fee, closing fee, weight handling fee and APOB fees you have to pay. Transportation, storage and removal ये free है for the first 3 months up to 100 units. What are the fees being waived off? The same thing. Storage, pick and pack fees, removal fees, these are free. आपकी शिपमेंट फ्री से पिकअप हो जाएगी। There are no charges to store your product in FC. फी वेवर्स कैसे अप्लाइड होंगे? जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है वो तो आपको अपफ्रंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज या Amazon इनबाउंड पिकअप सर्विस चूज कर रहे हो। There will be no charges will be shown and it will be shown as 0 till 100 units or up to 3 months. बट अगर आपके स्टोरेज, पैकिंग एंड रिमूवल फी अगर ये कुछ लगते हैं, ट्राई एपीए में तो फ्री है, बट अगर मान लो ये चार्जेस लगते हैं, यू विल बी रिइंबर्स द चार्जेस ऑन ए फोर्टनाइटली बेसिस। मतलब फोर्टनाइटली बेसिस पे आपको ये चार्जेस रिइंबर्स हो जाएंगे एंड सेम यू कैन से इट इन योर वीकली पेमेंट रिपोर्ट एज फी करेक्शन। तो आपको घबराने की भी बात नहीं, अगर आपके ट्राई एपीए में भी स्टोरेज, पैकिंग एंड रिमूवल फीस के चार्जेस लगते हैं वो आपको रिइंबर्समेंट हो जाएंगे एंड फी करेक्शन में आप देख सकते हो वीकली पेमेंट रिपोर्ट पे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, सो इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। सपोज एक नोकिया का फीचर फोन है जो 300 ग्राम का है, स्मॉल कैटेगरी का प्रोडक्ट है एंड इसका जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज। नाउ इसमें इस स्लाइड में आपको कंपैरिजन दिखाया गया है इजी शिप, एपीए एंड ट्राई एपीए। नाउ अगर आप देखोगे 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, दीज फीस आर जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन, एग्जांपल है सिर्फ। ये चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये आज के टाइम में डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे कंपेयर किया जाता है।
सो सपोज वो 1000 रुपीज का प्रोडक्ट इजी शिप में हम लोग रेफरल फीस अगर 5% दे रहे हो ऑन मोबाइल फोन, इजी शिप में 50 रुपीज लगेंगे, एपीए में 50 रुपीज लगेंगे। पहले आप सिर्फ 2 कॉलम रेफर करो, इजी शिप एंड एपीए। क्लोजिंग फी 50 रुपीज लगेगी इजी शिप में, एपीए में 26 रुपीज। शिपिंग वेट हैंडलिंग फी 66 रुपीज इजी शिप में लग रही है, एपीए में 56 रुपीज लग रही है। अगर इतना ही देखा जाए तो अभी तक एपीए इकोनॉमिक है, एपीए करने में ही सेलर को फायदा है। बट जब आप नीचे देखोगे, इजी शिप में ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं करना होता क्योंकि वहां पे सेलर खुद ही थर्ड पार्टी से भेज देता है या खुद से कर देता है। बट एपीए में उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए 10 रुपए देने होते हैं। सेम स्टोरेज उसको कुछ करना नहीं होता इजी शिप में, उसके शॉप पे उसके शोरूम में सामान पड़ा होता है। बट एपीए में उसको 3 रुपीज पर क्यूबिक वॉल्यूमेट्रिक वेट वगैरह देके 3 रुपीज सपोज उसको पे करना है। पिक एंड पैक फीस इजी शिप में उसको कुछ नहीं करना होता, एपीए में उसको 10 रुपए देने होते हैं। रिमूवल अगर उसको क्रिएट करना है इजी शिप में तो कोई जरूरत ही नहीं है, बट एपीए में भी उसको 10 रुपए रिमूवल पर प्रोडक्ट देना पड़ता है। तो अगर टोटल फीस देखी जाए 50, 50, 66, इजी शिप में 166 बन रहा है 1000 रुपीज के ऊपर, एंड एपीए में 155। बट एनीवेज एपीए में ये रिलेटिवली चीपर है। फिर भी उसको एपीए में भेजने का फायदा, एक तो फीस कम लग रही है, उसके अलावा उसको प्राइम टैग मिल रहा है, उसके अलावा इजी शिप के कंपैरिजन में एपीए में उसके जो प्रोडक्ट्स का व्यूज होता है वो 3 to 4x मिलता है। मतलब अगर 100 व्यूज आ रहे हैं तो एपीए में हो सकता है उसी प्रोडक्ट के ऊपर 300 या 400 व्यूज आ रहे हो। तो हर चीज में फायदा है। बट अब यहाँ पे आता है ट्राई एपीए प्रोग्राम। सेलर कहे कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन नहीं पे करनी, मुझे डर है फालतू में पे करूंगा, फिर वहां पे मेरा प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, स्टोरेज फीस नहीं पे करनी जब मैं अपने स्टोर पे मेरी जगह अवेलेबल है शोरूम में, इसी के लिए मैंने शॉप बनाई है। पिक एंड पैक फीस, मुझे पैकिंग वगैरह कुछ करनी नहीं होता। रिमूवल बाद में अगर मेरे प्रोडक्ट ना सेल और मुझे रिमूव करने के लिए पे करने पड़े तो मुझे ये सब चार्जेस क्यों पे करने, तो इसलिए हमने ट्राई एपीए दिए। तो ट्राई एपीए में रेफरल फी 50 रुपीज, क्लोजिंग फी 26, shipping fees 56 rupees, but transportation, storage, pick and pack, removal for the first 100 units और for the first 3 months हमने फ्री कर दी। सो ट्राई एपीए में उसको ये सब बेनिफिट करके ओनली 132 रुपीज सपोज उसको पे करना 1000 रुपीज पे। सो नाउ दिस पिक्चर गिव्स यू क्लैरिटी कि ट्राई एपीए हमारे लिए बेनिफिशियल है। सेलर्स को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं हम लोग जो एपीए में अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचना चाहते। एंड वैसे भी अगर आप देखोगे, अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं तो ब्रांड्स के पास इतना टाइम नहीं होता, और पहली बात उनके पास स्टोर्स भी नहीं होते कि वो इजी शिप कर पाए। तो ज्यादातर ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स वगैरह एपीए में ही बेचते हैं, क्योंकि एपीए में क्या होता है कि अमेजोन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। प्रोडक्ट को डैमेज भी होता है तो अमेजोन से हम लोग क्लेम कर सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन ट्रस्टवर्दी होती है अमेजोन की, कोई थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता। क्लेम करना हो अमेजोन के ऊपर हम लोग क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के साथ हमें बहस वगैरह भी करनी पड़ सकती है, ठीक है, और क्लेम आए ना आए उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो ट्राई एपीए आपको एक बेनिफिशियल टूल और बेनिफिशियल सोर्स आप कह सकते हो जो आपको मिलता है। I hope this points make sense and it is clear to everyone. अभी तक किसी को कोई डाउट एपीए ट्राई एपीए न्यू आया ट्राई एपीए, सेलर को क्या फायदा है ट्राई एपीए करके? We'll take it as a no. I hope everything is clear up till now. Condition and validity for try APA. So जैसे ही आपके प्रोडक्ट्स इनबाउंड हो जाते हैं अमेजोन वेयर हाउसेस में, आपका जो ट्राई एपीए प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाता है। सपोज आपने शिपमेंट बनाई आज 18 नवंबर को, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स 23 या 24, मान लो 23 नवंबर को इनबाउंड हो गए, तो आपके जो 3 मंथ स्टार्ट होंगे वो 23 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। एंड तब तक ट्राई एपीए आप यूज कर सकते हो जब तक आप अपने 100 यूनिट्स भेजते हो, या फिर फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, मतलब 23 नवंबर से लेके आप फरवरी तक उसको ले सकते हो। So these are the 3 points only. एनी टाइम आप रिमूवल वगैरह अपना क्रिएट कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। द रिमूवल फी विल आल्सो बी वेव्ड ऑफ एज ए पार्ट ऑफ दिस ऑफर, अगर आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर करते हो। इनबाउंड चार्जेस, स्टोरेज, पिक एंड पैक, रिमूवल फीस, एवरीथिंग इज वेव्ड ऑफ एज ए पार्ट ऑफ ट्राई एपीए प्रोग्राम। Okay, so that's all about APA, try APA. Any issues, any questions on this? We will take the questions.